بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اللہ نے عورت بھی کمال شے بنائی ہے مختاریہ، وڈیرے نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا۔ اس کا خاص ملازم مختار اس کے سر کی مالش کرتے ہوئے بولا، بالکل حضور، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وڈیرا بولا، ویسے مختاریہ تو مجھے آج کل خوش نہیں کر رہا ہے۔ ملازم بولا، وہ کیوں جناب، کیا غلطی ہو گئی؟ وڈیرا لمبی سانس لیتے ہوئے بولا، زندگی میں نہ کوئی رنگ ہے، نہ خوشبو، نہ رونق ہے، نہ حسن، اب تیرا مجھے کیا فائدہ؟ مختار بولا، مالک، مختار آپ پر قربان، آپ حکم تو کریں، جیسی رونق چاہیں گے نہ لگا کر دی تو میرا نام بھی مختار نہیں۔ وڈیرا صوفے سے اٹھتے ہوئے بولا، بس کر، آج تو بہت زیادہ ہی مالش کر دی ہے، اور ہاں، آج ہی اعلان کرا دے کہ گاؤں والوں نے گنے کی فصل مجھے دینی ہے، میں قیمت لگاؤں گا فصل کی۔ یہ کہہ کر وڈیرے نے تولیہ کندھے پر رکھا اور جانے لگا تو مختار بولا، وہ مالک باقی تو کوئی مسئلہ نہیں کرے گا، لیکن وڈیرے نے مڑ کر اسے دیکھا اور بولا، لیکن کیا؟ مختار نے کہا، مالک، آج کل امانت کی بیوہ بہت واویلا کر رہی ہے، گاؤں میں ہر کسی سے کہتی پھر رہی ہے کہ زمین ہماری، فصل ہماری، تو ہم وڈیرے کو فصل کیوں بیچیں؟ ہم خود شہر لے جا کر کیوں نہ بیچیں اور اپنی مرضی کا منافع کمائیں؟ وڈیرا حیرت سے آنکھیں پھاڑے مختار کی طرف دیکھ رہا تھا، بولا، اچھا، کمال ہے، اس گاؤں کے مرد مر گئے ہیں کہ اب ایک عورت ہمارے سامنے کھڑی ہوگی؟ اس کے بعد وڈیرا کہکہا لگا کر ہنسا اور بولا، میں نے کہا تھا نا مختاریہ، اللہ نے عورت بھی کمال شے بنائی ہے۔ دیکھ مختار، تو اس معاملے کو خود سنبھال لے، کیونکہ میں نے آج شہر ضروری کام سے جانا ہے اور میرے آنے تک تیرے سارے مسئلے حل ہو جانے چاہیے۔ یہ سن کر مختار نے ادب سے جھکتے ہوئے کہا، جو حکم مالک، میں نوکر، میں خادم۔ وڈیرا مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل پڑا اور بولا، مختار، کام بھی کر لیا کر، صرف خوشامد ہی کرتا رہتا ہے۔ یہ سن کر مختار نے برا سا منہ بنایا اور ڈرائنگ روم سے باہر نکل آیا۔ بہت چلاک آدمی ہے یہ، جس طرح خوش کر لو، مگر مجال ہے جو خوش ہو جائے۔ مختار منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے ڈرائنگ روم سے باہر آ رہا تھا کہ باہر آتے ہی حویلی کے خان سما سے ٹکرا گیا۔ خان سما بولا، اوے مختار، ہمیشہ خیالوں میں ہی کھویا رہتا ہے، کوئی کام بھی کر لیا کر۔ مختار جھنجھلا کر بولا، او چاچا، پوری حویلی میں ہر کسی کو میں ہی نکما اور خوش آمدی نظر آتا ہوں۔ خان سما ہنستے ہوئے بولا، لگتا ہے مالک نے پھر کوئی سچ بول دیا ہے۔ یہ کہہ کر خان سما اندر چلا گیا اور مختار پیر پٹکتے ہوئے باہر کی طرف چل پڑا۔ ابھی حویلی سے باہر ہی نکلا تھا کہ وڈیرے کے بڑے بیٹے کی جیپ آ کر رکی۔ وہ جیپ سے اترا، اسے اترتا دیکھ کر مختار الرٹ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ پہلے اس نے وڈیرے کے بڑے بیٹے کو جھک کر سلام کیا، پھر بولا، چھوٹے صاحب، آپ حویلی میں نہیں ہوتے ہیں تو خالی حویلی سائیں سائیں بچتی رہتی ہے۔ وڈیرے کا بیٹا بولا، ارے چاچا، بابا سائیں کو تو تم جانتے ہو، ہر وقت پابندیاں لگا کر رکھتے ہیں، یہاں نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ، یہ نہ کرو اور وہ نہ کرو، اس لیے دوستوں کے ساتھ ہی موج مستی میں اچھا وقت گزر جاتا ہے، تو بابا سائیں کی باتیں کیوں سنو؟ یہ کہہ کر وڈیرے کا بیٹا حویلی کے اندر چل پڑا۔ پیچھے سے مختار بولا، ہاں، موج مستی، جیسا باپ ویسا بیٹا۔ یہ کہہ کر مختار بھی وہاں سے چل پڑا۔ دیکھ رانی، جو ہے جیسا ہے چلنے دے۔ وڈیرے کے ظلم کی وجہ سے گاؤں کا کوئی آدمی اس کے سامنے آواز نہیں نکالتا ہے۔ اپنی زمین، اپنا گھر چھوڑ کر جائیں بھی تو کہاں جائیں؟ اور ایک بار کوشش کی تو تھی تیرے خالو نے کہ اسی وڈیرے کو زمین بیچ دیتے ہیں اور شہر چلے جاتے ہیں، لیکن غضب خدا کا کمبخت اتنے کم پیسے دے رہا تھا کہ تیرے خالو مایوس لوٹ آئے، کہنے لگے اس سے تو بہتر ہے کہ میں مفت میں اپنی زمین وڈیرے کو دے دوں۔ خبیث وڈیرے نے نہ خود جائز پیسوں پر زمین خریدی، نہ کسی اور کو لینے دی۔ میں نے چائے پیتے ہوئے کہا، خالہ، کب تک ایسا چلے گا؟ گنے کی فصل تیار کھڑی ہے، بے شرم وڈیرا زبردستی سستے داموں سب کی فصل خریدے گا اور اسے شہر لے جا کر مہنگے داموں فروخت کرے گا، تو ہم اپنی فصل خود کیوں نہ شہر لے جا کر بیچیں؟ خالہ سبزی بناتے ہوئے بولی، او پتر، دریا میں رہ کر مگرمچھ کے ساتھ بیر نہیں پالتے، تیرے 2 معصوم بچے ہیں، اوپر سے بیوہ،
माँ तेरी मर चुकी है, बाप बूढ़ा है, तू कहाँ उन बदमाशों के मुंह लग रही है। मैंने कहा, लेकिन खाला। खाला बोली, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बस अब और बहस न कर मेरे साथ। मैंने भी चाय का प्याला चरपाई पर रखा और बोली, सुन खाला, बेवा हूँ, मासूम बच्चे हैं, इसलिए मुझे उनके मुस्तकबिल की फिक्र है। मैं अपने गन्ने की फसल वडेरे को नहीं बेचूंगी, सुन ले। ये कहकर मैं चल पड़ी। पीछे से खाला चिल्लाई, रानी बात तो सुन, कहाँ जा रही है, क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी हुई है। मैं खाला के घर से निकली। खाला से तो बात करना ही बेकार है, किसी को तो पहल करना होगी या नहीं। मेहनत हम करें, पैसे हम लगाएं और मुनाफा वडेरा ले जाए। मैं मुंह में बड़बड़ाती अपने घर की तरफ चली जा रही थी। अभी थोड़ी दूर ही गई थी कि मेरे सामने चचा मुख्तार ने अपनी मोटरसाइकिल को ब्रेक लगाई। मैंने कहा, दफा दूर चचा मुख्तार, मुझे तो तुझसे इतनी नफरत है कि पूरे गांव में किसी से न होगी। वडेरे के गुलाम ने मेरा रास्ता काटकर मेरा पूरा दिन मनहूस बना दिया। चचा मुख्तार बोला, ओ बस कर दे रानी, बस कर दे, कान खोल कर सुन ले। इधर उधर जो तू बकवास करती फिर रही है, अपनी जबान काबू में रख, क्योंकि वडेरे का दिमाग घूम गया तो तेरी किस्मत के सितारे घूम जाएंगे। मैं चिल्लाई, ओ चाचा, जा जाकर किसी और को धमकियां देना, मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं क्या, पिंड का हर बंदा तेरे वडेरे से तंग आ चुका है। चाचा मुख्तार बोला, हाँ मुझे पता है पिंड का हर बंदा वडेरे से तंग है, लेकिन जबान सिर्फ तेरी चल रही है। ये कहकर चचा मुख्तार ने बाइक स्टार्ट की और बोला, देख रानी, तू बाज न आई तो मैं दीनू चाचा से बात करूंगा। ये कहकर वो चला गया। मैंने भी जवाब दिया, हाँ जाकर कर ले बात, ये शौक भी पूरा कर ले। मेरा नाम रानी है। मेरे 6 साल के 2 जुड़वा बेटे हैं। साल पहले मेरे शौहर का एक कार हादसे में इंतकाल हो गया। मैं दुखों की मारी 2 बच्चों के साथ अकेली रह गई। ससुराल वालों ने तो बेटे के दुनिया से जाने के बाद ही मुंह फेर लिया। क्या करती, बच्चों को लेकर बाप की दहलीज पर आ गई। अब्बा की 2 एकड़ जमीन है, उसी पर फसल बोते हैं। फसल की बुवाई के लिए भी खुद मेहनत करती हूँ। अपना जेवर बेचकर 2 गाय खरीदी हैं। मेरा तो गुजर बसर यही है, बस ऊपर से वडेरे के इस्तेहसाल ने तो गांव वालों की कमर तोड़ दी है। वडेरा दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है और गांव के बासी गरीब होते जा रहे हैं। मैं घर पहुंची तो क्या देखती हूँ कि हमारे हमसाए चचा बशीर के घर पर वडेरे के आदमियों ने धावा बोल रखा था। वो घर वालों को मार पीट रहे थे। मैं भागती हुई चचा बशीर के दरवाजे पर पहुंची। मैं देखकर हैरान रह गई कि वडेरे के आदमी चचा बशीर और उसके जवान साला बेटे को बुरी तरह मार रहे थे। वडेरे का एक आदमी बोला, बस करो, रुक जाओ। ये सुनकर उसके सारे साथी रुक गए। वो बोला, सुन बशीर, एक बार बताया था मगर तुझे समझ नहीं आई। दोबारा बता रहा हूँ, गन्ने की फसल मालिक को ही बेचनी है, समझ गया? तीसरी बार नहीं बताऊंगा। इतने में चची जो वहीं खड़ी थी बोली, शर्म कर दलाल, हया कर, तू हमारे हाथों का बच्चा है और बुजुर्ग पर हाथ उठा रहा है। ये सुनने की देर थी कि उसने एक थप्पड़ खींचकर चाची को मार दिया। ये देखकर तो मेरी आंखों के साथ मुंह भी खुल गया। चचा बशीर और उसका बेटा जो अब तक नीचे बैठे हुए थे, गुस्से से खड़े हुए। चचा बशीर ने कहा, खबीस आदमी, तेरी इतनी जुर्रत। लेकिन इससे पहले के चचा और उसका बेटा कुछ करते, वडेरे के आदमियों ने दोनों को जकड़ लिया। चाची चिल्लाई, तूने मुझे मारा कमबख्त। चाची शायद उसे मारने के लिए आगे बढ़ी थी कि वडेरे के आदमी ने चाची का बाजू पकड़कर चाची को जोर से धकेला कि चाची पीछे जा गिरी और धमकी देते हुए बोला, सुन चाची, मुझे मजबूर न कर कि मैं कुछ गलत कर बैठूं। जैसा कह रहा हूँ बस वैसा करो। ओए चलो सारे, बहुत हो गया तमाशा। वडेरे के आदमी ने अपने साथियों को कहा तो सब उसके साथ चल पड़े। मैं घर के खुले दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी। बाहर जीप खड़ी थी, वो जीप में बैठे और रवाना हो गए। चाची उठते हुए चिल्लाई, हाय अल्लाह, क्या वक्त आ गया है। ये वही दलाल है जो मेरे हाथों में खेला है और आज ये वडेरे के हाथों में खेल रहा है। जा बेशरम आदमी, कीड़े पड़े तेरे हाथ में, तेरे हाथ टूट जाए। खबीस अपनी माँ जैसी औरत पर हाथ उठाता है। फिर चाची की मुझ पर नजर पड़ी तो बोली, जा रानी जा, तू यहाँ क्यों खड़ी है? जा अपने घर, यहाँ कुछ नहीं बदलने वाला। हमने इसी तरह ही रहना है। चाची की बात सुनकर मैं अपने घर की तरफ चल पड़ी। मैं दरवाजा खोलकर घर में दाखिल हुई
तो सहन में ही चारपाई पर अब्बा बैठे हुए थे। मेरे दोनों बच्चे भी डरे सहमे अब्बा के साथ ही चारपाई पर बैठे हुए थे। अब्बा ने मुझे देखते ही कहा, रानी तू कहाँ रह गई थी? मैंने कहा, अब्बा वडेरा तो दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, क्या उसे कोई रोकने वाला भी है? अब्बा ने सर झुका लिया और बोला, उसे कौन रोकेगा बेटी, हर किसी को अपनी जान और इज्जत प्यारी है, और तूने देख तो लिया थोड़ी सी मज़ाहमत पर ये हाल किया जाता है, तो क्या वो आदमी किसी को जान से मारने से गुरेज करेंगे? मैंने कहा, अब्बा तो पुलिस किस लिए है, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। अब्बा ने कहा, बेटा रानी, पुलिस सुबह सवेरे वडेरे के घर पर हाजिरी देती है, उसके जराइम की पुष्टपनाही करती है। पुलिस करेगी क्या हमारी मदद? पुलिस भी अमीर की मदद करती है, गरीब की गुर्बत का मजाक तो खुद गुर्बत भी उड़ाती है। अब्बा की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब्बा के साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं था। मैंने दोनों बच्चों को लिया और कमरे में चली गई। वडेरा हवेली के लॉन में बेचैनी के आलम में टहल रहा था। चंद लम्हों बाद मुख्तार आया, दोनों हाथ बांधकर खड़ा हो गया और बोला, साईं, छोटी बीबी को कमरे में बंद कर दिया है, बहुत शोर कर रही थी। वडेरा बोला, मेरी बात कान खोल कर सुन मुख्तार, मैं उस लड़की को बहुत मुश्किल से लेकर आया हूँ, पूरे 10 लाख देकर मैंने उसे खरीदा है, लेकिन मुझे डर है कि ये यहाँ से भाग न जाए, इसलिए बड़ी बेगम साहिबा से कहो कि जाकर उसे समझाए। इतने में वडेरे का बेटा आया और बोला, बाबा साईं, ये ठीक नहीं है। वडेरे ने हैरत से बेटे की तरफ देखा और बोला, पुत्र क्या ठीक नहीं है? वडेरे का बेटा बड़ी खुद एतमादी से बोला, बाबा साईं, आप खुद तो करें अय्याशी और मैं करूं शादी। वडेरा गुस्से में बोला, ओए बकवास न कर, बीवी है मेरी, शादी करके लाया हूँ, चल अपना काम कर। ये सुनकर वडेरे का बेटा बुरा मुंह बनाकर चला गया। वडेरे ने मुख्तार से कहा, सुन मुख्तारिया, मुझे अपनी हवेली के लिए वफादार मुलाजिम चाहिए, 14-15 साल उम्र हो, लेकिन गूंगा हो। मुख्तार डरते डरते बोला, साईं, गूंगा ना मिले तो? वडेरा गुस्से से चिल्लाया, अहमक आदमी, गूंगा ना मिले तो गूंगा कर देना, चल दफा हो यहाँ से। मुख्तार ये सुनकर खामोशी से चला गया। मुख्तार बड़ी मालकिन के कमरे में पहुंचा तो बड़ी मालकिन ने कहा, मुझे मालूम है मुख्तार, तुम यहाँ क्यों आए हो। मैं नई आने वाली लड़की से मिल आई हूँ, उसे समझा दिया है, यहाँ के तौर तरीके भी बता दिए हैं, लेकिन ये बताओ मुख्तार, ऐसा कब तक चलेगा? कब तक तुम्हारा साईं जबरदस्ती की शादियां करके नौजवान लड़कियों को लाता रहेगा और फिर कुछ अरसे बाद उन्हें तलाक दे देगा? मुख्तार जो सर झुकाकर खड़ा था बोला, बड़ी मालकिन, मैं तो खुद नौकर हूँ, क्या कह सकता हूँ। मालकिन बोली, हम सब नौकर हैं मुख्तार, सब कैदी हैं, हम में कौन आजाद है, तुम जाओ यहाँ से। ये सुनकर मुख्तार मालकिन के कमरे से निकल आया। गांव वाले अपनी फसल काटकर वडेरे की हवेली में भिजवा रहे थे। वडेरे ने हर हाली को उसकी फसल के औने पौने पैसे देने थे और वो ये सारी फसल शहर भिजवाता और मार्केट रेट पर फसल बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा लेता। मैं भी अपनी फसल की कटाई में मसरूफ थी। वडेरे के जुल्म को तो मैं अपनी आंखों से देख चुकी थी, लेकिन दिल था कि मानने को तैयार ही नहीं था। दिल से एक ही आवाज आ रही थी कि किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। मैं अपनी काफी सारी फसल काटकर एक जगह ढेर लगा चुकी थी। सूरज सर पर आ गया था। सोचा कुछ देर आराम कर लूं कि उसी असना में वडेरे के 2 आदमी ट्रैक्टर चलाते हुए मेरे सामने आकर खड़े हो गए। एक आदमी ट्रैक्टर से नीचे उतरकर बोला, चल माई, जितनी फसल काट ली है उठाकर ट्रैक्टर पर लाद दे। मैं उसे घूरते हुए बोली, ये माई किसको कहा है, मैं तुझे माई नजर आती हूँ? वो हंसते हुए बोला, नाराज क्यों होती है, चल माई नहीं कहता, बड़ी आपा कह देता हूँ। ये बड़ी आपा पर भी एतराज है। मैंने कहा, मेरी बात कान खोल कर सुन और जाकर अपने वडेरे को भी बता दे कि ये फसल तेरे बाप की नहीं है, इसलिए मेरी फसल के इर्द गिर्द नजर मत आना, चल जा यहाँ से। वो बोला, चल तो नाराज मत हो, मैं खुद इकट्ठा करके रख लेता हूँ। ये कहकर वो फसल की तरफ बढ़ा। ये देखकर मैंने अपने हाथ में पकड़ी दातरी उसकी तरफ बढ़ाई और बोली, खबरदार, अगर तूने मेरी फसल को हाथ लगाया तो यहाँ से सलामत जाने नहीं दूंगी। ट्रैक्टर पर बैठा हुआ आदमी बोला, चल शकूरे, चल यहाँ से,
क्या औरत के मुंह लग रहा है? मालिक खुद ही इससे पूछ लेंगे। हमारा काम खत्म हो गया है। ये सुनकर मेरे सामने खड़े आदमी ने अपने कंधे पर रखी धोती को जोर से झटका और मुझे घूरते हुए ट्रैक्टर में जा बैठा। फिर वो दोनों चले गए। वडेरा इनकार सुनने का आदी नहीं था। मुझे नहीं मालूम था कि उस इनकार के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन जो भी होने वाला था वो ज्यादा अच्छा नहीं था, इतना तो मुझे भी इल्म था। जालिम वडेरा मेहमान खाने में काजी बना बैठा था। जुल्म की दास्तानें रकम करने वाला अगर काजी बन जाए तो उसका इंसाफ कैसा होगा। एक बुजुर्ग चारपाई से खड़ा हुआ और बोला, साईं, अहमद अली रोजाना मेरी बेटी को मारता पीटता है और उसे खर्चा भी नहीं देता है। मेरी बेटी अब तंग आ चुकी है, उसके साथ नहीं रहना चाहती। ऊपर से 3 बच्चों का साथ है। ये खब्बीस आदमी बच्चों तक का खर्चा नहीं देता है। उसके बच्चों का खर्चा मैं उठा रहा हूँ। अब आप बताएं कि मैं अदालत नहीं जाऊंगा तो क्या करूंगा। वडेरा, जो अपनी शानदार कुर्सी पर शाहाना अंदाज में बैठा हुक्का पी रहा था, बोला, ओ चाचा, अब क्या तू गांव की इज्जत को थाने कचेरी में घसीटेगा? फिर वो अहमद अली से मुखातिब हुआ और बोला, अहमद अली, ये चाचा क्या कह रहा है? अहमद अली ने कहा, साईं, दरअसल बात ये है, जब से मैंने इनकी बेटी से शादी की है मैं तो मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरी बीवी बच्चों को मारती पीटती है। उन्हें तो वक्त पर खाना क्या देगी, वो तो मुझे वक्त पर खाना नहीं देती है। ऊपर से अगर मैं कह दूं तो मेरे साथ झगड़ा करती है। अब पंचायत लगी है, कहते हुए शर्म भी आती है। लेकिन चाचा, पंचायत में आ ही गया है तो फिर मैं भी क्यों लिहाज करूं? साईं, आपको इल्म है कि मैं अपने कपड़े तक खुद धोता हूँ। ये सुनकर पंचायत में बैठे तमाम मर्द एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वटेरे ने गुस्से से बुजुर्ग की तरफ देखा और बोला, चचा, क्या अहमद अली ठीक कह रहा है? बुजुर्ग ने कहा, नहीं साईं, नहीं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मेरा पूरा मोहल्ला गवाह है कि ये रोजाना मेरी बेटी को मामूली बातों पर मारता पीटता है। चाहे तो आप किसी से भी पूछ लें। अहमद अली बोला, साईं, मैंने चचा की बेटी पर सिर्फ एक बार हाथ उठाया है, वो भी भला क्यों, बता दूं चचा? अहमद अली बुजुर्ग की तरफ देखते हुए बोला, मेरी बीवी का आजकल अपने चचा के घर बहुत आना जाना है। वो जब से चचा का बेटा दुबई से आया है, मेरी बीवी रोजाना वहाँ चली जाती है और वहीं पड़ी रहती है। मेरे बार बार मना करने के बावजूद वो चचा के घर जाती है और 2 दफा तो मैंने खुद उसे रंगे हाथों पकड़ा है। चचा के बेटे के साथ खूब हंस हंस कर गपशप लगा रही थी। ये सुनते ही बुजुर्ग तैश में आ गए और बोले, तू अपनी बकवास बंद कर। अहमद अली, शर्म कर। मेरी बेटी पर ही नहीं, तू अपनी बीवी पर भी बुहतान लगा रहा है। वडेरा चिल्लाया, ओ बस कर चचा, बस, बहुत हो गया। 2 थप्पड़ तो मैं भी अपने घरवाली को मार देता हूँ, लेकिन वो तो अपना सामान बांध कर मैके नहीं चल पड़ती। ये माजरा कुछ और ही है। तू आज ही बेटी को ससुराल वापस भेज। और तू अहमद अली, मेरी बात गौर से सुन। अपनी बीवी का नान नफका सही तरीके से अदा करना और बेशक उसके घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दे। बुजुर्ग चिल्लाया, साईं, ऐसा न करें। साईं, ये कैसा इंसाफ है? मेरी बेटी मासूम है, बेगुनाह है। लेकिन वडेरे ने अपने मुलाजिम से कहा, ओ करीमा, चल चाचे को उसके घर पहुंचा। बुजुर्ग चिल्लाता रहा, लेकिन वडेरे ने उसकी एक ना सुनी। झूठा अहमद अली फखर से सीना चौड़ा करते हुए पंचायत में सबको देखने लगा जैसे बीवी पर बुहतान लगाकर उसने बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया हो। इतने में मुख्तार और उसके साथ वडेरे के 2 मुलाजिम मेहमान खाने में दाखिल हुए तो वडेरे ने वहाँ बैठे लोगों से कहा, गांव वालों, पंचायत खत्म हो गई है, अब तुम लोग भी जाओ। ये सुनकर सब लोग चले गए। वडेरे ने कहा, हाँ मुख्तारिया, क्या खबर लाए हो? मुख्तार बोला, मालिक, ये आदमी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। वडेरे ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ भाई, बोलो। दोनों मुलाजिम में से एक बोला, साईं, दीनू चाचा की बेटी रानी ने अपने गन्ने की फसल देने से इनकार कर दिया है। वडेरे ने हुक्का पीते हुए निहायत इत्मीनान से जवाब दिया, शर्म आती है मुझे तुम लोगों को मर्द कहते हुए। एक मामूली औरत ने तुम लोगों को 4 बातें सुनाई और तुम मुंह लटकाए मेरे सामने आकर खड़े हो गए। अब तुम लोग ये चाहते हो कि मैं जाऊं और उस औरत के मुंह लगूं। सारे हुक्के का मसा किरकिरा कर दिया नालायकों ने। देख मुख्तार, मेरी बात गौर से सुन। मुख्तार हाथ बांधे अदब से बोला, जी मालिक, हुक्म करें। वडेरे ने कहा, मेरा एक उसूल है कि बार बार तनबिया करने के बावजूद जब कोई मेरे सामने उछलता है
تو میں اس کی ٹانگیں تڑوا دیتا ہوں، لیکن کبھی کبھی حالات ایسے بھی بن جاتے ہیں کہ ٹانگیں تڑوانا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے یہ تو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ مختار بولا، جی مالک، میں جانتا ہوں۔ وڈیرے نے کہا، جانتے ہو تو پھر جاؤ اور آج رات ہی یہ کام کر دو۔ یہ سن کر مختار اور وڈیرے کے دونوں ساتھی مہمان خانے سے چلے گئے۔ آدھی رات کا وقت تھا، دروازے پر زور زور سے دستک ہو رہی تھی۔ دستک کی آواز سن کر میری اور ابا جی کی آنکھ کھل گئی۔ ابا جی بولے، خدا خیر کرے، اس وقت کون آیا ہے؟ ابا نے چپل پہنی اور باہر والے دروازے کی طرف چل پڑے۔ میں بھی ابا کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ ابا نے دروازہ کھولا تو سامنے خالو اور گاؤں کے چند اور لوگ کھڑے تھے۔ خالو بہت بوکھلائے ہوئے تھے۔ ابا نے کہا، کیا بات ہے عزیز، تم رات کے اس وقت خیریت تو ہے؟ خالو بولے، خیریت نہیں ہے دینو بھائی، تیرے گنے کی کھڑی فصل کو کسی نے آگ لگا دی ہے۔ یہ سنتے ہی ابا جی سر پر ہاتھ رکھ کر وہیں زمین پر بیٹھ گئے اور بولے، یہ تو کیا کہہ رہا ہے عزیز؟ میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ خالو نے کہا، بھائی یہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، چلو ہمارے ساتھ، گاؤں کے کچھ لوگ آگ بجھانے میں مصروف ہیں، جلدی چلو۔ ابا جی ان کے ساتھ زمینوں کی طرف چلے گئے۔ میں قریب رکھی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ ظالم وڈیرے نے میری کھڑی فصل کو ہی آگ لگوا دی، صرف اس لیے کہ میں نے اپنی فصل انہیں نہیں بیچی۔ ابا، خالو اور گاؤں کے لوگ جب زمینوں میں پہنچے تو وہاں کچھ لوگ آگ بجھانے کی کوشش تو کر رہے تھے، لیکن یہ کوشش بے فائدہ تھی۔ آگ نے کھڑی فصل کو پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری فصل جل کر راکھ ہو گئی۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد ابا گھر واپس آئے اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ خالو نے کہا، رانی اپنے ابا کا خیال رکھ، صدمے کے مارے ان کا برا حال ہے۔ اس کے بعد خالو نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور چلے گئے۔ صبح سویرے ہی میں کھیتوں میں چلی گئی۔ تیار فصل کو راکھ میں تبدیل ہوتا دیکھ کر کس کی طبیعت خراب نہیں ہوگی؟ ہماری فصل جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ ہم تو 2 وقت کی روٹی کو ترس جائیں گے۔ یا اللہ، یہ کیسا ظلم ہے؟ کیا یہ ظلم کبھی ختم ہوگا؟ لگتا تھا کہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور حویلی کی طرف چل پڑی۔ میں حویلی پہنچی۔ پہلے تو ملازموں نے اندر جانے نہیں دیا۔ آخرکار میرا ہنگامہ کرنے پر ایک ملازم نے مجھے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ میں سیدھی حویلی کے اندر چلی گئی۔ اندر پہنچی تو وڈیرا اور بڑی مالکن صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بڑی مالکن مجھے دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی۔ میں چلائی، یہ کون سا انصاف ہے سائیں؟ اگر کوئی غریب کسان تمہیں اپنی فصل نہیں بیچے گا تو تم اس کی فصل کو آگ لگوا دو گے؟ مالکن نے وڈیرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ وڈیرے نے کہا، او جھلی، آج کل گاؤں میں کچھ بھی غلط ہوتا ہے تو وہ میرے حصے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ بیچارے گاؤں والے بھی کیا کریں، میں رکھوالا جو ہوا اس گاؤں کا۔ میں چلائی، سائیں ایسے ہوتے ہیں رکھوالے جو غریب لوگوں کے منہ سے نوالا چھین لیں، ان کو بے عزت کرے، مارے، کوٹے۔ مجھے یقین ہے کہ میرے گنے کی کھڑی فصل کو تم نے آگ لگائی ہے۔ ارے تم نے تو میرے بچوں کے منہ سے نوالا چھین لیا ہے، میرا نقصان کون بھرے گا؟ بتاؤ۔ اتنے میں وڈیرے نے اپنے ملازم کو آواز لگائی۔ ملازم اندر آیا تو وڈیرے نے کہا، اس دکھیاری کو باہر کا رستہ دکھاؤ۔ ملازم نے کہا، چل ماسی باہر چل۔ میں نے غصے سے اسے ڈانٹا، چل ہٹ، جا رہی ہوں میں، اور میں حویلی سے باہر نکل آئی۔ میں چند قدم ہی چلی ہوں گی کہ میرے آنسو بہنے لگے۔ میں گھر جانے کی بجائے کھیت کی طرف چل پڑی۔ میں کھیت میں پہنچی، میری ساری فصل جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی اور جھولی اٹھا کر وڈیرے کو بد دعائیں دینے لگی۔ مجھے روتے روتے کافی دیر گزر گئی۔ کھیت کے کنارے پر ٹالی کا ایک گھنا درخت ہوا کرتا تھا، جس کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر میں آرام کرتی تھی۔ نہ جانے کیسے یہ درخت بچ گیا تھا۔ میں اٹھی اور درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ رو رو کر میرا برا حال ہو چکا تھا، لیکن آنسو تھم ہی نہیں رہے تھے کہ اسی لمحے میرے کانوں سے آواز ٹکرائی، اب اپنے آنسو پوچھ لے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو 2 نوجوان لڑکیاں کھڑی تھیں۔ میں کھڑی ہوئی، میں نے اپنے آنسو پوچھے اور بولی، تم دونوں کون ہو؟ ان میں سے ایک لڑکی بولی، ہم مسافر ہیں، بس یہاں سے گزر رہے تھے، آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو رک گئے۔ میں نے کہا، میں نے تم دونوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، کیا تم لوگ کہیں اور سے آئی ہو؟
इस गांव की तो नहीं हो? एक लड़की बोली। जी हम कहीं और से आई हैं। मैंने कहा तो फिर जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ, यहाँ मत रुको, क्योंकि ये जगह इंसानों के रहने की नहीं है। दूसरी लड़की हैरत से बोली, लेकिन आप तो खुद इंसान हैं। मैंने कहा हाँ मैं इंसान हूँ, लेकिन मैं मर चुकी हूँ। यहाँ रहने वाले सारे इंसान मर चुके हैं, सिर्फ इस गांव का वडेरा जिंदा है और वो हमेशा जिंदा रहेगा। देखो उसने मेरी फसल को जलाकर राख कर दिया है और मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। वो किसी की भी बेटी को अगवा करके ले जाता है, कोई उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। यहाँ रहने वाले सब इंसान मर गए हैं, तुम भी यहाँ से चली जाओ। ये कहते हुए मैं आंसू बहाती अपने घर की तरफ चल पड़ी। चंद दिन बाद वडेरा ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था। शहर से डीएसपी आया हुआ था। डीएसपी ने चाय का कप टेबल पर रखा और बोला, देखो शाह आलम, तुम गांव में रह रहे हो, यहाँ ज्यादा चेक एंड बैलेंस नहीं है, इसलिए तुम फायदे में हो। शहर में हालात इतने अच्छे नहीं हैं, बहुत सोच समझकर और संभल कर चलना पड़ता है। वडेरा बोला, ओ डीएसपी, तू मेरा जिगरी यार है, तुझसे तो कुछ छुपा हुआ नहीं है। मैं इस साल इलेक्शन में खड़ा होने की तैयारी कर रहा हूँ। जीतना तो मैंने ही है, बस जहाँ मैं वजीर बना तेरी तरक्की मेरी जिम्मेदारी होगी। डीएसपी बोला, शाह आलम, काम में तेरा कर दूंगा, लेकिन ये सारा काम कुछ अरसे के लिए खुफिया रखना पड़ेगा। वडेरा फौरन बोला, मुझे मंजूर है यार, मुझे काम होने से मतलब है, जब तक तू चाहेगा मैं खुफिया रखने के लिए तैयार हूँ। डीएसपी ये सुनकर खड़ा हुआ और बोला, हाँ अब ठीक है, मुझे इजाजत दो, मैंने एक जगह जरूरी विजिट पर जाना है। वडेरा खड़ा हुआ और बोला, अगर जरूरी जाना है फिर मैं नहीं रोकूंगा। वडेरा डीएसपी को छोड़ने के लिए हवेली के गेट तक आया। डीएसपी अपनी पुलिस वैन में बैठा और चला गया। जैसे ही डीएसपी की वैन हवेली से बाहर निकली, बाहर से एक मुलाजिम दौड़ता हुआ आया और बोला, साईं, करमू और रहीम आपके घोड़े को टहलाने के लिए निकले थे। अभी अभी रहीम का फोन आया है कि चलते चलते घोड़े की टांग टूट गई है। वडेरे ने हैरत से आंखें फाड़कर मुलाजिम की तरफ देखा और बोला, ये तो क्या बकवास कर रहा है, जल्दी जा, जाकर देख और मेरा घोड़ा लेकर आ, तुझे पता है मुझे अपना घोड़ा कितना अजीज है। मुलाजिम बोला, जी साईं, मैं ट्रैक्टर लेकर अभी पहुंचा। वडेरा निहायत परेशानी के आलम में हवेली के अंदर जा रहा था कि एक मुलाजिम ने वडेरे को आवाज दी, साईं जल्दी अंदर आए, आपके लिए जरूरी फोन आया है। वडेरा बोला, ओए सब्र कर, आ रहा हूँ। वडेरा ड्राइंग रूम में पहुंचा, रिसीवर पर पड़ा मोबाइल उठाया, दूसरी तरफ से आवाज आई, मालिक एक परेशानी खड़ी हो गई है। वडेरे ने कहा, क्या बात है, साफ साफ बता। दूसरी तरफ से आवाज आई, मालिक जो जानवर खरीद कर ला रहे थे वो रास्ते में लाते हुए अचानक ही बीमार हो गए। अभी हम शहर में रुके हुए हैं, यहाँ हमने जानवरों के अस्पताल में भी उनका चेकअप कराया है। 5 गाय तो मौका पर ही मर गई हैं, 5 गाय शदीद बीमार हैं और 10 भैंसें सही सलामत हैं। भैंसों को मैंने दूसरी गाड़ी पर हवेली भिजवा दिया है। जो जानवर बीमार हुए हैं उनका चेकअप करवाकर मैं पीछे से आऊंगा। वडेरे ने जवाब दिया, अच्छा चल ठीक है। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया और बोला, खुदा खैर करे, लगता है आज का दिन ही मनहूस है। तकरीबन 20 मिनट के बाद वडेरे के मुलाजिम वडेरे का घोड़ा लेकर हवेली पहुंच गए। इतने में जानवरों का डॉक्टर भी हवेली पहुंच गया। वडेरे ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब बड़ी तवज्जो से मेरे घोड़े को चेक करना, इस घोड़े को मैंने अपने बच्चों की तरह पाला है। डॉक्टर ने कहा, आप परेशान न हो, मैं देख रहा हूँ। इतने में एक मुलाजिम भागता हुआ आया और बोला, साईं। वडेरे ने झुंझला कर जवाब दिया, अब कौन सी मुसीबत आ गई है। मुलाजिम बोला, साईं तबेले के बहुत सारे जानवर बीमार हो गए हैं। वडेरे ने कहा, ये तू क्या कह रहा है, अभी मुझे सीधे का फोन आया था, वो जो जानवर खरीद कर ला रहा था वो भी बीमार हो गए हैं। हवेली के जानवर भी बीमार हो गए, सारी बीमारी मेरे जानवरों को लग रही है। उसके बाद डॉक्टर से मुखातिब हुआ, डॉक्टर साहब जल्दी करें, इसके बाद मेरे दूसरे जानवरों को भी देख लें। इतने में मुख्तार भी वहाँ चला आया। उसे देखते ही वडेरे ने कहा, ओ मुख्तारिया, पता नहीं तो सारा दिन कहाँ गायब रहता है, फसलों में स्प्रे करवाई थी या नहीं? इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी होनी चाहिए। मुख्तार अदब से झुककर बोला, मालिक मैं नौकर, मैं खादिम, स्प्रे तो कल ही करवा दिया था, आप बिल्कुल फिक्र न करें। वडेरा बोला, मुख्तारे ये सारे जानवर तूने अपनी निगरानी में चेक कराने हैं, मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ,
اور میرے گھوڑے کا خاص خیال رکھنا۔ مختار بولا، جو حکم سائیں۔ وڈیرا اپنے کمرے میں آیا۔ اس نے اپنی شاندار کھیڑی پہنی، پگ سر پر رکھا، اپنی چمکتی گاڑی میں بیٹھا اور باہر نکل گیا۔ وڈیرا گاؤں کے پٹواری کے پاس پہنچا۔ پٹواری اسے گھر پر ہی مل گیا۔ پٹواری نے وڈیرے کو مہمان خانے میں بٹھایا۔ وڈیرے نے بڑے روب سے پٹواری کو کہا، اشفاق، میں کب سے تیرا انتظار کر رہا ہوں کہ تو خود حویلی آ کر مجھے خوشخبری سنائے گا، لیکن دیکھ، انتظار کرتے کرتے مجھے خود آنا پڑا۔ پٹواری نے کہا، سائیں، میں آپ کا کام ہی کر رہا تھا، دراصل ان کاموں میں بڑی احتیاط کرنا پڑتی ہے۔ وڈیرے نے کہا، اشفاق، کیا احتیاط کرنی پڑتی ہے؟ سرکار کی زمین ہی بیکار پڑی ہے، ہم نے تو اس پر محنت کر کے ہی کھانا ہے، بلکہ ہماری محنت کے بعد وہی زمین سونا بن جائے گی۔ پٹواری بولا، آپ کی بات بالکل بجا ہے، لیکن سرکار کے بھی اپنے اصول ہیں، سرکار اسے زمین پر قبضہ کہتی ہے۔ وڈیرے نے کہا، وہ بڑے دیکھے ہم نے سرکار کے اصول، یہاں ہم خود ہی سرکار ہیں، تو فائنل بات کر، میں تیری اتنی خاطر کروں گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ پٹواری یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے الماری سے ایک فائل نکالی اور زمین کے متعلق وڈیرے کو سمجھانے لگ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وڈیرے نے کہا، واہ اشفاق واہ، تو نے مجھے خوش کر دیا، تو فکر نہ کر، کل صبح مختار تیرے پیسے تجھے یہی گھر پہنچا دے گا۔ پٹواری نے وڈیرے کے ہاتھ چوم کر اسے دعا دی تو وڈیرا بولا، ویسے پٹواری، میں ذاتی طور پر خوشامد پسند نہیں کرتا۔ یہ سن کر پٹواری نے وڈیرے کا ہاتھ چھوڑ دیا اور برا سا منہ بنا لیا۔ وڈیرا کھڑے ہوتے ہوئے بولا، چل اشفاق، اب مجھے اجازت دے۔ لیکن پٹواری بولا، نہ سائیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چائے کے بغیر چلے جائیں۔ وڈیرا منع کرتا رہا، لیکن پٹواری نے چائے منگوا لی۔ چائے پیتے پیتے شام کافی گہری ہو گئی۔ وڈیرے نے کہا، اشفاق، اب مجھے اجازت دے، تو نے بہت دیر کرا دی ہے، اندھیرا بھی بڑھ رہا ہے۔ وڈیرا اپنی گاڑی میں بیٹھا اور حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی آدھے رستے ہی گیا تھا کہ وڈیرے کی گاڑی خراب ہو گئی۔ اس نے بہت کوشش کی مگر گاڑی اسٹارٹ نہیں ہوئی۔ وہ بولا، اف، یہ کیا مصیبت ہے، آج کا دن بہت بھاری تھا۔ یہ کہہ کر وڈیرے نے جیب سے موبائل نکالا، فون ملانے لگا تو سگنل نہیں تھے۔ وہ شدید پریشانی میں بولا، اوئے ہوئے، یہ سگنل کو کیا ہو گیا ہے؟ یہاں تو ہر وقت سگنل ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، وڈیرا سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کرے، کیونکہ رات ہو چکی تھی، حویلی بھی ابھی دور تھی۔ گاؤں کے لوگ تو مغرب ہوتے ہی گھروں کو چلے جاتے ہیں، اس لیے آس پاس کوئی نہیں تھا۔ اچانک گاڑی کے سامنے ایک زرد رنگ کی روشنی پھیلی اور وہ روشنی دیکھتے ہی دیکھتے ڈھیروں چمگادڑوں میں تبدیل ہو گئی۔ یہ دیکھتے ہی وڈیرا جلدی جلدی گاڑی کے شیشے بند کرنے لگا کہ اسی اثنا میں کھلے شیشے سے ایک چمگادڑ گاڑی کے اندر داخل ہوئی اور اس نے وڈیرے پر حملہ کر دیا۔ وڈیرا اسے دور ہٹانے لگا اور گاڑی کا شیشہ پوری طرح بند نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے شیشہ کھلا رہ گیا۔ کچھ اور چمگادڑی گاڑی کے اندر داخل ہو گئیں اور باقی چمگادڑی گاڑی کے اوپر اڑنے لگی۔ گاڑی کے اندر گھسنے والی چمگادڑوں نے بھی وڈیرے پر حملہ کر دیا۔ وڈیرے نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر کی طرف گر پڑا۔ وڈیرا مسلسل چلا رہا تھا، دور ہٹو، دور ہٹو۔ وڈیرا دھڑام سے گاڑی سے باہر گرا اور اس نے گاؤں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ وڈیرا آگے آگے بھاگ رہا تھا اور ساری چمگادڑیں وڈیرے کے پیچھے پیچھے اڑتی جا رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ چمگادڑوں نے آج وڈیرے کو نہیں چھوڑنا۔ گاڑی کے اندر وڈیرے پر حملہ کرنے والی چمگادڑ نے اسے متعدد جگہ کاٹ بھی لیا تھا۔ وڈیرا حویلی کی طرف بھاگتا جا رہا تھا۔ اس نے مڑ کر چمگادڑوں کی طرف دیکھا کہ اچانک ساری چمگادڑیں غائب ہو گئیں۔ وڈیرا رک گیا اور حیرت سے پیچھے دیکھنے لگا۔ وہ حیران تھا کہ 3 درجن چمگادڑیں کہاں گئیں۔ اسے پیچھے سے آواز آئی، وہاں کیا دیکھ رہے ہو؟ وڈیرے نے مڑ کر دیکھا، اس کے سامنے ایک بہت خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ وڈیرا آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ اس لڑکی نے ایک زوردار تماچا وڈیرے کو مارا۔ تماچا پڑنے کی دیر تھی کہ وڈیرا نیچے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ ادھر کافی دیر ہو گئی، وڈیرا گھر نہیں پہنچا تو گھر والوں کو تشویش ہوئی، تو وڈیرے کے بیٹے نے مختار اور چند ملازم ساتھ لیے اور وڈیرے کو ڈھونڈنے نکل پڑا۔ رستے میں انہیں وڈیرا نیچے بے ہوش گرا ہوا مل گیا۔ وڈیرے کا بیٹا بولا، چچا مختار، بابا سائیں کو کیا ہوا ہے؟ مختار بولا، پتر، مالک کو اٹھاؤ، حویلی چلتے ہیں۔ مختار نے ایک ملازم سے کہا، اوے کرمو، جلدی سے ڈاکٹر کو فون کر کہ وہ حویلی پہنچے۔
वडेरे के बेटे ने 2 मुलाजिम की ड्यूटी लगाई कि वडेरे की गाड़ी लेकर हवेली पहुँचे। वडेरे का बेटा और मुख्तार उसे लेकर हवेली की तरफ रवाना हो गए। वडेरे को 5 घंटे के बाद होश आया। वो शदीद डरा हुआ था। बड़ी मालकिन, उसका बेटा और मुख्तार वडेरे के पास बैठे हुए थे। वो घबराकर उठ बैठा। बेटा बोला, क्या हुआ बाबा साईं? आप जंगल के करीबी रास्ते पर बेहोश पड़े हुए थे। वडेरा सबको आंखें फाड़े देख रहा था। बोला, हाँ, वो मुझ पर चमगादड़ों ने हमला कर दिया था। उसके बाद एक खूबसूरत लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा। फिर मुझे याद नहीं कि क्या हुआ। बेटे ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? इस पूरे पिंड में कोई माई का लाल नहीं जो आपकी तरफ आंख उठाकर देख सके। थप्पड़ मारना तो दूर की बात है। वडेरे ने कहा, मगर वो थप्पड़। मालकिन बोली, आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? मालकिन ने मुख्तार से कहा, मुख्तार, डॉक्टर को फोन करके बता दो कि मालिक को होश आ गया है, लेकिन बुखार बहुत तेज है। चंद दिन वडेरा हवेली में ही बीमार पड़ा रहा। उन चंद दिनों में वडेरे का घोड़ा मर गया और कबीले के जानवर भी एक एक करके मरने लगे। वडेरा अपने कमरे में बिस्तर पर बैठा सूप पी रहा था कि मुख्तार कमरे में दाखिल हुआ। उसने मोबाइल वडेरे की तरफ बढ़ाते हुए कहा, साईं, जरूरी फोन है। वडेरे ने फोन कान से लगाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, साईं, पटवारी अशफाक बात कर रहा हूँ। एक बुरी खबर है। वडेरे ने कहा, हाँ बोल अशफाक, आजकल सिर्फ बुरी खबरें ही मिल रही हैं। तू भी सुना दे। अशफाक ने कहा, एक नया अफसर आया है। वो बहुत ईमानदार है। जितने भी लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जे किए हुए हैं वो उनसे कब्जा छुड़वा रहा है। इसलिए साईं, मेरी माने तो। वडेरा उसकी बात काट कर बोला, हाँ हाँ, मैं समझ गया हूँ। जो तुझे बेहतर लगे तू वो कर, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये कहकर वडेरे ने फोन बंद कर दिया। फोन बिस्तर पर फेंकते हुए बोला, हर तरफ से बुरी खबर ही आ रही है। सुन मुख्तार। मुख्तार बोला, जी मालिक। वडेरे ने कहा, 2 बकरों का सदका करा दे। मुख्तार बोला, ठीक है साईं, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। ये कहकर वो चला गया। अगले दिन वडेरा ड्राइंग रूम में परेशान बैठा था कि एक मुलाजिम भागता हुआ अंदर आया और बोला, साईं, गजब हो गया। वडेरा परेशानी के आलम में खड़ा हो गया और बोला, खुदा खैर करे, अब कौन सी मुसीबत आ गई है? मुलाजिम बोला, साईं, हमारी सारी फसल जल गई है। वडेरे ने आगे बढ़कर मुलाजिम का गिरेबान पकड़ लिया और चिल्लाया, ये तू क्या बकवास कर रहा है? मुलाजिम बोला, साईं, मैं सच कह रहा हूँ। वडेरे ने मुलाजिम को एक तरफ धक्का दिया और बोला, दफा हो यहाँ से, और खुद तेज तेज कदम उठाता बाहर की तरफ चल पड़ा। सामने मुख्तार भी बदहवासी के आलम में इसी तरफ आ रहा था। वडेरा चिल्लाया, मुख्तार, वो एक गाड़ी निकाल, खेतों में चलना है। मुख्तार जी साईं जी कहता हुआ गिराज की तरफ भाग पड़ा। उसने गिराज से गाड़ी निकाली। वडेरा ड्राइविंग सीट पर बैठा, मुख्तार फ्रंट सीट पर बैठा। वडेरा अंधाधुंध गाड़ी चला रहा था। मुख्तार दिल ही दिल में बोला, आज का दिन कहीं मेरा आखिरी दिन ही ना हो। वडेरा जो गुस्से से सुर्ख हो रहा था गरजा, कुछ कह रहे हो मुख्तार? मुख्तार बोला, नहीं साईं, मेरी क्या मजाल कि मैं कुछ बोलूं। वडेरा खेतों के पास पहुंचा। सारी फसल तबाह हो चुकी थी। न सिर्फ गन्ने बल्कि कपास की भी सारी फसल गल चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे फसल पर जहरीला स्प्रे किया गया है। तमाम पौधे गलकर नीचे पड़े हुए थे। वडेरे के चंद मुलाजिम वहाँ खड़े हैरत से फसल को देख रहे थे। वडेरे ने एक मुलाजिम को गिरेबान से पकड़ लिया और चिल्लाया, ओए करमू, कुछ बचा भी है या नहीं? मुलाजिम ने डरते डरते नहीं में सर हिला दिया। ये सुनकर वडेरे ने उसे जोर से धक्का दिया और वो दूर जाकर गिर पड़ा। वडेरा अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गया। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ा रहा था, ये मेरे साथ क्या हो गया? कैसे हो गया? उसके बाद वडेरा खड़ा हुआ और बोला, मुख्तार, किसने फसलों को स्प्रे लगाया है? मुझे वो बंदा और स्प्रे अभी चाहिए, छोड़ूंगा नहीं किसी को। ये कहकर वडेरा गाड़ी में बैठा और हवेली की तरफ रवाना हो गया। हवेली के बिल्कुल सामने सड़क की दूसरी तरफ बरगद का एक बहुत पुराना दरख्त था। रानी बरगद के दरख्त के नीचे बैठी हुई थी। जैसे ही वडेरे की गाड़ी हवेली के करीब आई, रानी गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। वडेरे ने गाड़ी को ब्रेक लगाई, गाड़ी से निकला और बोला, चल हट जा मेरे सामने से, वरना अच्छा नहीं होगा। रानी ने कहकहा लगाया और बोली, पता है आज मैं कितनी खुश हूँ वडेरे। आज मेरे दिल को सुकून मिला है। पता है क्यों? इसलिए कि आज ऊपर वाले ने तेरा और मेरा हिसाब बराबर कर दिया है।
वडेरे ने गुस्से से गाड़ी का दरवाजा बंद किया, रानी की तरफ बढ़ा। उसने रानी को उसकी चुटिया से पकड़ा और बोला, देख रानी, मैं तुझे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे सामने से हट जा वरना जान से मार दूंगा। ये कहकर उसने रानी को जोर से धक्का दिया। रानी बरगद के पेड़ के पास जा गिरी। वडेरा वापस गाड़ी में बैठा और हवेली की तरफ रवाना हो गया। रानी चिल्लाई, देख वडेरे देख, इसे कहते हैं अल्लाह का इंसाफ। वडेरा हवेली में दाखिल हुआ तो डीएसपी पहले से ही वहां मौजूद था। वडेरा गर्मजोशी से उसकी तरफ बढ़ा कि डीएसपी बोला, शाह आलम, ब्लैक का सारा माल पकड़ा गया है। इस केस से तुम्हें जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मेरी मान तो अपनी जान और इज्जत बचा। वडेरे ने डीएसपी को उसके बाजू से पकड़कर झंझोड़ा और बोला, ये क्या कह रहे हो डीएसपी? मेरा दिवालिया निकल जाएगा। मैं पहले ही तबाह हो चुका हूँ, मेरे जानवर मर गए हैं, मेरी फसल तबाह बर्बाद हो चुकी है। अब क्या मैं ये हवेली बेच दूं? डीएसपी ने वडेरे के कंधे को थपथपाते हुए कहा, शाह आलम, तेरे साथ मेरी दोस्ती है, इसलिए तुझे बताने चला आया। इस केस से जान छुड़ानी है तो पैसा लगाना पड़ेगा, वरना अगर जेल हो गई तो जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। ये कहकर डीएसपी चला गया। आधी रात का वक्त था। वडेरा लॉन में बैठा सोचों में गुम था। मुख्तार आया और बोला, मालिक, सारे काम हो गए हैं, हवेली गिरवी रखवा दी है। ये कहकर मुख्तार ने हवेली की फाइल वडेरे के सामने टेबल पर रख दिया। वडेरे ने कहा, मुख्तार, अचानक ये सब क्या हो गया है? मेरी शान और शौकत को किसकी नजर लग गई है? मुख्तार बोला, साईं फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। वडेरे ने कहा, कैसे ठीक हो जाएगा मुख्तार, कैसे ठीक होगा? तू जा यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दे। ये सुनकर मुख्तार चला गया। थोड़ी देर बाद वडेरा उठा और अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। इतने में दो जवान खूबसूरत लड़कियां वडेरे के सामने आकर खड़ी हो गईं। वडेरा उन्हें देखकर घबरा गया और एक लड़की को देखकर बोला, अरे तू तो वही है जिसने मुझे थप्पड़ मारा था, कौन हो तुम? दोनों लड़कियां मुस्कुराईं और बोली, हम जिनजादियां हैं। ये सुनते ही वडेरा बोला, मुझे क्या पागल समझा है? तू कहेगी तो मैं मान लूंगा, मैं भी कह सकता हूँ मैं भी जिनजादा हूँ। ये सुनकर एक जिनजादी हंसी और बोली, अच्छा तो चलो देखते हैं कि कौन जिन है। ये कहकर जिनजादी ने गौर से वडेरे को देखा तो वडेरा जमीन से 2 फुट ऊपर उठा और धड़ाम से नीचे आ गिरा। जिनजादी हंसी और बोली, चलो अब तुम्हारी बारी। वडेरा खड़ा हुआ, उसकी आंखों में खौफ नजर आ रहा था। वडेरा बोला, कौन हो तुम दोनों? दूसरी जिनजादी बोली, अभी भी तुझे नहीं पता चला? ये कहकर दूसरी जिनजादी ने वडेरे को गर्दन से पकड़ लिया और उठाकर दूर फेंक दिया। वडेरा अपनी कमर पर हाथ रखे उठने की कोशिश करने लगा। दोनों जिनजादियां वडेरे की तरफ बढ़ते हुए बोली, अब बता जालिम इंसान, कैसा लग रहा है? जुल्म हमेशा नहीं चल सकता, उसे एक ना एक दिन खत्म होना ही होता है, और तेरे जुल्म का सूरज भी अब गुरूब हो चुका है। दूसरी जिनजादी बोली, कहो तो तुम्हें तुम्हारी कब्र की जगह भी दिखा देते हैं। वडेरा रोने लग गया। उसने जिनजादियों के सामने दोनों हाथ जोड़ दिए और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, कसम खाता हूँ आइंदा जिंदगी भर किसी पर जुल्म नहीं करूंगा। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मेरी जान बख्श दो, मुझे माफ कर दो। बड़ी मालकिन दूर खड़ी सारा तमाशा देख रही थी। वो वडेरे की तरफ भागती चली आई। मालकिन वडेरे के पास बैठ गई और बोली, क्या हुआ मालिक, क्या हुआ आपको? आप किससे माफी मांग रहे हैं? वडेरा बोला, जिनजादियों से। जिनजादियां वडेरे को तो नजर आ रही थी लेकिन मालकिन को नजर नहीं आ रही थी। दोनों जिनजादियां वडेरे को देखकर मुस्कुरा रही थीं। मालकिन बोली, यहाँ कोई नहीं है मालिक। वडेरा बोला, मुझे अंदर ले चलो वरना ये मुझे मार देंगी। मालकिन वडेरे को अंदर ले आई। वडेरा मुड़ मुड़ कर दोनों जिनजादियों की तरफ देख रहा था। वडेरे के अंदर चले जाने के बाद जिनजादियां गायब हो गईं। अगले दिन मालकिन वडेरे के कमरे में आई। वडेरे की तबीयत बहुत खराब थी। डॉक्टर को बुलाया गया लेकिन वडेरे को फॉलिज का अटैक हो गया और वो बिस्तर से जा लगा। ड्राइंग रूम में मुख्तार आया। बड़ी मालकिन बैठी हुई थी। मुख्तार बोला, मालकिन, जमीनों पर जो मजदूर लगाए थे वो अपनी मजदूरी का मुतालबा कर रहे हैं। कुछ मुलाजिम तो हवेली की हालत देखकर काम छोड़कर चले गए हैं। जो चंद एक वफादार मुलाजिम रह गए हैं उनकी तनख्वाहों का क्या करेंगे? मालकिन ने जेवरात के चंद डब्बे मुख्तार के सामने रखे और बोली, मुख्तार चचा, ये मेरे जेवरात हैं, इन्हें बेचकर मजदूरों की मजदूरी दे दो और सारे मुलाजमीन को छुट्टी दे दो।
सिवाय रुखसाना के हवेली के कामकाज मैं और रुखसाना मिलकर संभाल लेंगे। बाकी जमीन बेचने की कोशिश करो, वरना अगर ये हवेली भी हाथ से निकल गई तो हम सड़क पर आ जाएंगे। मुख्तार सेवरात के डब्बे उठाकर बोला, जी मालकिन, मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी जमीनों का सौदा हो जाए। ये कहकर मुख्तार चला गया। मुख्तार हवेली से निकला, जैसे ही वो बरकत के दरख्त के पास से गुजरा, रानी वहाँ खड़ी थी। मुख्तार को देखते ही बोली, क्या हुआ चचा मुख्तार, तेरी मोटरसाइकिल कहाँ है? लगता है कि पेट्रोल के पैसे भी नहीं बचे। मुख्तार ने चिढ़कर कहा, रानी तेरा और कोई काम नहीं है? बदरों की तरह हवेली के इर्द गिर्द मनलाती रहती है। रानी ने इतराते हुए कहा, चचा मुख्तार, आजकल हवेली पर नजर रखना बहुत जरूरी हो गया है। क्या मालूम कब क्या हो जाए। पता है, मैं जब भी यहाँ आती हूँ हवेली की मातमज़दा दीवारें देखकर खुश हो जाती हूँ, जैसे किसी ने मेरे जख्मों पर मरहम रख दिया हो। मुख्तार ये कहते हुए चल पड़ा। रानी तो बिल्कुल पागल हो गई है, जा जाकर अपना इलाज करा। रानी पीछे से चिल्लाई, मुख्तार चचा, अपनी टांगों पर तो खड़ी हो ना, तेरे वडेरे की तरह बिस्तर पर तो नहीं पड़ी हुई। इतने में मालकिन पहली बार हवेली से बाहर आई। उसने अपनी उंगली से सोने की अंगूठी निकाली और रानी को देते हुए बोली, रानी ये रख ले, शायद इससे तेरा नुकसान पूरा हो जाए और हमें माफ कर दे। ये कहकर मालकिन वापस हवेली के अंदर चली गई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा ना करे ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।